Welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back again with Crack Technical Interview Series, episode number 4. So I welcome you all to this session, beta. और जैसा आप जानते हो, in every session what we do, we see 5 questions, 5 potential questions that can be asked from you in any technical interview. So this is an episode 4 of this series and I hope that you guys are liking it, you guys are benefiting from it, and you guys are going to make it viral. So my friends, I launch multiple initiatives for you guys in just one hope that you guys will like it, you guys will share it as much as possible so that maximum students can benefit from it and our revolution becomes bigger. So before we start, let me introduce myself. My name is Ankit Goyal. I am a gold medalist from BTech IIT. I have obtained AIR1 twice in GATE. I have taught more than 2 lakh students for GATE and ESE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. Most of the students know this about me, beta, but what I am proud of for the most time is the kind of work that my team is doing, is the kind of initiatives that we are bringing on this channel which are benefiting maximum number of students and which have created a revolution in the field of GATE and ESE. Now, any student in any remote part of the country can dream to enter into a PSU, to crack a state entrance examination or to get into an IIT just because of the initiatives that are running for free. And my friends, remember, the free initiatives are not restricted to YouTube. They are also available on the Unacademy Learning app. That is why you must have Unacademy app in your phone and then you can unlock any free initiative simply by using the code AnkitESE. Other than that, my dear, if you want to watch my Unacademy special classes, then you have to visit this link. On this link, you will find all the special classes that I have taken till date or I am going to be taking in the near future. If you check out the upcoming folder, you will come to know about the classes that I'll be conducting in the future. And already the classes that I have taken you will find for PSUs, for GATE, GATE previous year, GATE practice session, marathon, and some of the most important topics from various subjects. You will find all of them on this link. So make sure that you visit this link and enjoy all the knowledge that is lying right here. So let's get started yaar, let's get started. तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई. Why is there no reluctance torque in a cylindrical rotor machine? Now, when you face a question like this, the first thing that you have to explain is this term, reluctance torque. So, what is the simplest way to explain reluctance torque? You will say, reluctance torque is produced in a machine due to non-uniform reluctance. First point. Okay. रिलक्टेंस टॉर्क तब बनता है जब रिलक्टेंस नॉन यूनिफॉर्म होता है. सेकेंड थिंग, द स्टेटर फ्लक्स ऑलवेज वांट्स टू पास थ्रू अ पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस. है ना, स्टेटर का फ्लक्स हमेशा मिनिमम रिलक्टेंस के रास्ते से जाना चाहता है. जस्ट लाइक करंट ट्राइज टू टेक अ पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस. तो आप एनालॉजी भी बता सकते हो यहां पे. ओके, so that is the second point. Third point, that is why stator magnetic field or stator flux tries to align the rotor in the direction of stator magnetic field so that it can pass through a path of minimum reluctance, and this torque is called as reluctance torque. ठीक है, या फिर ऐसे एक्सप्लेन कर देना, the tendency of stator flux to align the rotor poles along the stator flux in order to create a path of minimum reluctance is called reluctance torque. तो आप सिंपली क्या बता दिए, reluctance torque क्या होता है भाई? ये नॉन यूनिफॉर्म रिलक्टेंस की वजह से आता है. स्टेटर का फ्लक्स चाहता है मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ, जिस कारण से वो रोटर के पोल्स को स्टेटर के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है. दैट इज योर रिलक्टेंस टॉर्क. Now, why is there a no reluctance torque in cylindrical rotor machine? The air gap in the cylindrical rotor machine is uniform. So,
द बेसिक क्राइटेरिया फॉर रिलक्टेंस टॉर्क इज द नॉन यूनिफॉर्म गैप और द नॉन यूनिफॉर्म रिलक्टेंस विच डज नॉट ऑकर इन अ सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। या फिर अगर आंसर को बेटा और ब्यूटीफुल करना है तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, देयर आर टू टाइप ऑफ टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। यहां थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बारे में भी बात कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो ना कि क्रॉस क्वेश्चन आपको किया जाए तो आप रिलक्टेंस टॉर्क पूरा समझाने के बाद ये बोल देना सिलेंड्रिकल रोटर मशीन के अंदर एक ही टॉर्क आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब एग्जामिनर को वहां से क्यों मिल गया कि भैया आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पे बात की जाए, और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पे बात करेगा तब आप क्या बोलोगे, व्हेन स्टेटर एंड रोटर बोथ कैरी करंट्स in such a scenario they will both produce magnetic field and the tendency of the two magnet or the two magnetic field to align parallel to each other produces electromagnetic torque। बड़ा सिंपल है, जब दोनों पे करंट एग्जिस्ट करेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आने की कोशिश करेंगे, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पैदा होगा। और जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर को अपने अलोंग लाने की कोशिश करेगी, देन रिलक्टेंस टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। रिलक्टेंस टॉर्क के लिए रोटर पे वाइंडिंग होना या करंट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड सिस्टम। अगेन बेटा अगर इस क्वेश्चन में आपको नॉलेज दिखानी है तो आप क्या कह सकते हो, इन डीसी मशीन वी हैव स्टेशनरी फील्ड एंड रोटेटिंग आर्मेचर and the basic purpose behind it is the need of commutation which is a mechanical rectifier। सही है, तो डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर पे रखा ही इसलिए गया क्योंकि वहां कम्यूटेटर का यूज करना जरूरी था। and that is the biggest cause why DC machines rating are much less as compared to synchronous machine। यही कारण है कि रेटिंग कम क्यों होती है। Now, coming to AC machines, we do not need commutator, and that is why we prefer to keep armature winding on stator। है ना, आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर पे इसलिए रखा क्योंकि वहां कम्यूटेटर चाहिए था, लेकिन एसी मशीन में ऐसी कोई नीड नहीं थी, तो वहां आर्मेचर को रखा स्टेटर पे। अब स्टेटर पे रखने से क्या क्या फायदे हुए भाई, कि अगर आप फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे लगाओगे यू विल ओनली नीड 2 स्लिप रिंग्स बिकॉज डीसी हैज ओनली 2 टर्मिनल, तो लेस नंबर ऑफ स्लिप रिंग। देन फील्ड वाइंडिंग हल्की होती है, फील्ड वाइंडिंग हल्की होती है तो रोटर इनर्शिया इज ऑल्सो लेस, इट कैन रोटेट एट हायर स्पीड। थर्ड, इफ आर्मेचर इज केप्ट ऑन स्टेटर द हीट कैन बी इजीली डिसिपेटेड। ठीक है। फोर्थ, if armature is kept on stator it can easily be insulated। तो देखो insulated easily, more efficient, ठीक है, high peripheral speed क्योंकि less weight of rotor, रोटर पे अगर हल्की वाइंडिंग है तो less weight of rotor। तो बेटा ऐसे अगर आप 4-5 पॉइंट बता दोगे ना तो more than enough है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा भी नहीं। बट अगेन देखो बात यही आती है ना कि आंसर में आप स्टार्ट कहां से लेते हो। आपका स्टार्ट जो है ना आंसर का, वो आपको बेटा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी देता है, एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनर को ये इंप्रेशन भी देता है, इंटरव्यूअर को, कि भाई आपको आगे पीछे की चीजें भी नोन है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कुछ चीजें पता है बाकी चीजें गायब है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पॉज लो एंड देन आंसर करो, सो दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू मस्ट स्टार्ट। अगला, why the efficiency of 3-phase induction motor is less than a 3-phase transformer। I believe most of the students know the answer to this question। ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर अच्छे से पता है तो आप ये भी चाहोगे कि भाई इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन करे, तो कहीं ना कहीं अपने को ना क्यों छोड़ना पड़ता है कि कहां से क्रॉस क्वेश्चनिंग आनी चाहिए। तो यहां पे आंसर बड़ा सिंपल है यार, कि इन 3-phase इंडक्शन मोटर ड्यू टू रोटेशन देयर विल बी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस which is absent in case of a transformer, and due to higher losses induction machine will have less efficiency। बहुत इजी है, लेकिन बेटा जब आपने फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस की बात कर दी तो आप यहाँ पे चाहो, अगर आप चाहते हो और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो
तो आप बता सकते हो फ्रिक्शन लॉस इज ड्यू टू द ब्रश एंड द बेयरिंग फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इज ड्यू टू द एयर ड्रैग अप्लाइड ऑन द शाफ्ट। अब आपने ना उसे क्यों दे दिया एक तरह से कि आपको फ्रिक्शन विंडेज के बारे में थोड़ा तो पता है। अब वो क्या सोचेगा, बच्चे को और ग्रिल किया जाए, क्या पता इसे कहाँ तक मालूम है। तो जब अगर कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तो उसे आप आंसर से जोड़िए। अगर आपको क्वेश्चन सुन के ऐसा लगता है कि इसका आगे पीछे आपको सब कुछ पता है, तो प्लीज यूज दैट टेक्निकल टर्म, प्लीज ऐड 1 or 2 लाइन्स सो दैट कि डिस्कशन उस डायरेक्शन में गाइड हो। एग्जामिनर आपके ट्रैप में नहीं फंसा, कोई बात नहीं, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ कम्यूटेटर। हाँ, तो अब बेटा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर यू मस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कम्यूटेटर। दैट कम्यूटेटर इज नथिंग बट इट इज मेड ऑफ अ हार्ड ड्रॉन कॉपर। पहली चीज, हार्ड ड्रॉन कॉपर। सेकेंड, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। थर्ड थिंग, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद माइका इंसुलेशन। ये बेसिक आप ना कंस्ट्रक्शन पे कमेंट कर दिए। डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, माइका इंसुलेशन 6 to 8 mm which can handle 30 to 40 वोल्ट। ठीक है, तो अब भाई यहां से ये तो समझ आ गया कि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे द नीड ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज टू कन्वर्ट द एसी इंड्यूस्ड वोल्टेज टू डीसी व्हेन इट रीचेस द ब्रशेस। तो आपने पहला पर्पस बताया that you want to convert AC to DC because induced voltage is always AC in nature। फिर आप बोलोगे whereas in DC motor it converts the DC current coming from the battery to AC in order to produce a unidirectional torque, in order to produce a unidirectional torque। Third thing आपने बोला since field MMF is stationary, commutator also keeps armature MMF stationary to produce unidirectional torque या to produce a steady torque। तो यहां पे बेटा आपने ना अपनी नॉलेज में ये दिखा दिया कि आपको ये मालूम है दोनों फील्ड आपस में स्टेशनरी रहेंगे तभी टॉर्क पैदा होता है। तो वो आगे आपसे उस पर बात कर सकता है। तो आगे अगर वो आपसे उस पर बात करता है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टॉर्क इज Fs Fr sin लैम्डा एंड लैम्डा इज एंगल बिटवीन Fs एंड Fr। ठीक है, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन पे ना बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया जा सकता है, तो यहां पे आप बात कर सकते हो। बट देन अगेन बेटा ये वाला पॉइंट तभी छेड़ना, कीपिंग आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी, जब आप इसके आगे बात कर पाओ, वरना यहीं छोड़ देना। डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मोटर के अंदर जो डीसी करंट बैटरी से आता है उसे एसी में कन्वर्ट करता है ताकि टॉर्क यूनिडायरेक्शनल बने। यानी ये आपके हाथ में पावर है कि कौन से डिस्कशन को आगे कैरी करना है और कौन से पे आप थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी परफॉर्म ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर। एक बहुत अच्छा मौका है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शो योर नॉलेज। फर्स्ट टेल द बेसिक थिंग। Open circuit test is conducted on LV side. It is conducted to determine the shunt branch parameter and core losses of a transformer. ठीक, finish. Short circuit test is conducted on HV side at rated current. It is conducted to determine the series branch parameters and the copper losses. ठीक है, तो आपने बता दिया 3 पॉइंट दोनों में। यहां क्रॉस क्वेश्चनिंग की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वो अलग बात है कि आपसे अगर देखो टेस्टिंग में और ज्यादा बंदा घुस जाए, ठीक है, संपनर्स टेस्ट के अंदर आपको लेके चला जाए, आपके को हीट रन टेस्ट के बारे में क्रॉस क्वेश्चन कर ले, चांस है। या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे आगे क्या कर सकता है, इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा दो भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट हाँ, यहां पे से ना कोई टफ क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो यहाँ से कोई टफ क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसको फालतू अपना कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, ठीक है। तो बेटा जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो इस सीरीज के अंदर हम कवर करते जा रहे हैं, और जितना मेरा दिमाग जहाँ तक जाता है, जो मैं क्रॉस क्वेश्चन सोच सकता हूँ कि अगर मैं एक एग्जामिनर या इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो दैट ऑल्सो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। तो आप लोगों के जो भी सजेशंस होते हैं डेफिनेटली उसको मैं रीड करता हूं, लेकिन बेटा आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो भी इनिशिएटिव्स नए आते रहते हैं प्लीज़ स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि मैक्सिमम बच्चे उसका बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, अगर आपको प्लस पे आना है तो मेरा मशीन का कोर्स चल रहा है, बेस्ट टाइम है आ जाओ, क्योंकि पावर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। अभी मशीन का कोर्स चल रहा है 7 to 9, 10 to 12, और इसके बाद बेटा पावर सिस्टम आ रहा है फ्रॉम 8 सितंबर, ठीक है। 8 सितंबर से पावर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी आ जाओ। और ये ध्यान रखें 22 अगस्त को नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। यहाँ पे मचाओगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। और बार्क का नेक्स्ट टेस्ट है बेटा 21 अगस्त फॉर 25 मिनट 20 क्वेश्चन, एंड 28 को है ग्रैंड मॉक टेस्ट, जिसमें 120 मिनट का पेपर होगा फॉर 100 क्वेश्चंस। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे। टिल देन बच्चों ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो, लेट्स क्रैक इट।